Good morning, students. Your continuation of the same lesson, that is the gift of chapel, is to begin over here, and you are ready with your book. We both are ready with our book. We are both ready with our pencil in our hand. And as I told you, it's etiquette not to use pen on your textbooks. So always remember to use a pencil on your textbooks. In our last page, we came to know that the three children of the house, that is Ravi, Mridu and Meena, they have already found the chappals which they are planning to give it to the beggar. So let's read further. Here, said Ravi to the beggar, dropping the slippers in front of the old man, wear these and don't come back. The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them and left, muttering a blessing to the children. In a minute he had vanished around the corner of the street. The music master came out of the house and took an unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles. Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. Lalli, he called. After a few moments, she hurried up to him. Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here. Ravi, Mridu and Meena silently watched Lalli and the music master search every corner of the veranda. He scurried around, looking over the railing and the crouching near the flower pots to look between them. Brand new they were. I went all the way to Mount Road to buy them. He went on, saying, they cost a whole month fees. Do you know? Soon Lalli went in to tell her mother. Rukumani appeared, looking harassed with Pati following her. Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. So many vendors come to the door, worried Pati. Rukumani caught sight of Ravi, Mridu and Meena sitting under the tree. Have you children? She began, and then seeing they were, let me complete the reading. Seeing they were curiously quiet, went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda? A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. Another straight, tighter one appeared in place of her usually soft, pleasant mouth. Rukumani was angry. Thought Mridu with a shiver. She wouldn't be so upset if she knew about the poor beggar with sores on his feet. She tried to tell herself. So let's complete the understanding of this whole page, that is 26. तो क्या हुआ, ये तीनों ने चप्पल तो मिल गई, इन लोग ढूंढ रहे थे घर पे, इन लोग ने वो चप्पल लाई, रवि ने वो चप्पल उठा ली और बैगर के सामने उसको जैसे कि पटकते हैं ना, वैसे पटक दी उन्होंने, ड्रॉपिंग द स्लीपर्स, यानी पटका उनके सामने और क्या बोला, ये चप्पल जल्द से जल्द पहनो और इधर से निकल लो और फिर कभी भी मत आना इधर बैग करते हुए. तो वो जो बैगर थे वो उन्होंने स्लीपर्स को घूरा और जल्दी से अपना जो टॉवल था अपने शोल्डर पे ढाका, यानी कि कैप्ट ऑन द शोल्डर, और चप्पल को पहना, पुश्ड हिज फीट इनटू देम और जल्दी से चले गए. क्या बड़बड़ाते हुए चले गए? मटरिंग मीन्स थोड़ा मुंह में बोलना अंदर ही अंदर. वो तीनों को ब्लेसिंग्स दे के गए. इन अ मिनट, एक ही मिनट में क्या हुआ, ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट. वो एक ही झटके में ऐसे गायब हो गए जैसे कि आए ही नहीं थे बैगर. अभी क्या हुआ नेक्स्ट, म्यूज़िक मास्टर जो थे वो घर के बाहर आए और टुक एन अप्रिशिएटिव लुक
अप्रिशिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ देम, यानी कि थोड़ा जैसे कि हम किसी बच्चों को देखते हैं और थोड़ा मुस्कुरा के, अगर नहीं भी मुस्कुराएं तो थोड़े जान पहचान लोगों को हम देखते हैं अच्छी नज़रों से, वैसे देखा वो तीनों को जो चुपचाप बैठे थे कहाँ पर, पेड़ के नीचे, और क्या खेल रहे थे, मार्बल से खेल रहे थे, यानी बैठे ही खेल रहे थे। फिर वो अपनी चप्पल ढूंढने लग गए, दैट इज़ द म्यूज़िक मास्टर, जो उन्होंने वरांडा में रख के गए थे, वेर ही हैड पुट देम, वरांडा में ही रखी थी। फिर उनको जब चप्पल नहीं दिखी तो उन्होंने लली को बुलाया आफ्टर अ फ्यू मिनट्स और बोला कि जो लली जो उनकी आवाज़ सुन के वापस जल्दी से आई और उन्होंने बोला कि मैंने चप्पल इधर ही उतारी थी, हैव यू सीन माई चप्पल्स माई डियर, लली को बोला, तो आई रिमेंबर हैविंग कैप्ट देम ईयर, और उन्होंने ये यकीन से बोला कि मैंने इधर ही उतारी थी मेरी चप्पल। रवि, मृदु और मीना चुपचाप ये सारी बातें देख रहे थे, लली को देख रहे थे और म्यूज़िक मास्टर को भी देख रहे थे। सर्च एवरी कॉर्नर, ये दोनों हर एक कॉर्नर को सर्च कर रहे थे वरांडा में, जो गमले रखे थे उसके बीच में भी देख रहे थे, लुकिंग अराउंड। और रेलिंग जो होता है वरांडा का, यानी जो एक हाथ पे पकड़ने का, जो चबूतरे के ऊपर जो हाथ से पकड़े वो हिस्सा, उसको रेलिंग बोलते हैं। उधर उन्होंने देखा नज़रों से एकदम गौर से दो दो पॉट्स के फ्लावर पॉट जो रखे थे उसके अंदर झाँक के देखा, क्रूचिंग नियर, यानी कि झाँक के देखा। ब्रांड न्यू देवर, और वो जब ढूंढ रहे थे उस बीच में जो म्यूज़िक मास्टर थे वो बोलते जा रहे थे कि मेरी चप्पल बहुत ही न्यू थी, अभी अभी मैंने उसको माउंट रोड से बाय किया था, ख़रीदा था, और बोला कि उसकी कॉस्ट इतनी है कि मेरी पूरी महीने की फ़ीस उसमें ख़रीदने में चली गई। तो सून लली वेंट इन टू हर मदर टू टेल हर मदर, वो लली अंदर गई और मम्मी अपनी मम्मा को बुला के लाया। रुकुमनी अपीयर्ड लुकिंग हैरिस, रुकुमनी परेशान होके एकदम बाहर आई, विथ पाती फॉलोइंग, और पाती उनके पीछे पीछे आई। रुकुमनी तो किचन में थी बट आ गई वो, पाती उनके पीछे पीछे आई, जो ग्रैंड मदर है किसकी, मृदु की। वेयर कुड दे बी, कहाँ जा सकती हैं, इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन, और ये बहुत ही बुरी बात है कि किसी ने हमारे यहाँ से वो चुरा ली है, अपसेटिंग वाली बात है हमारे लिए, बहुत ही यानी कि व्हेन समवन्स थिंग्स आर गेटिंग स्टोलन इन समवन्स एल्स हाउस, इट्स रियली वेरी बैड थिंग टू से। उनको वो चीज़ गायब नहीं होनी चाहिए थी, किसी और की चीज़, वो भी म्यूज़िक मास्टर की, तो एक अपसेट होने वाली बात तो लाजिम है। ओके, तो उन्होंने बोला रुकुमनी ने कि बहुत से तो आते हैं वेंडर्स, सेलर्स आते हैं बेचने के लिए डोर पे। तो पाती एकदम वरीड हो गई जब रुकुमनी ने बोला सो मेनी वेंडर्स कम टू द डोर, वरीड पाती ने भी बोला। फिर रुकुमनी ने उन तीनों को देखा बैठे हुए और उनकी आंखें थोड़ी हैव यू चिल्ड्रन शी बिगैन एंड देन सीइंग दे वर, और जब वो बोल रही थी आगे उनका सेंटेंस कि क्या तुमने देखा है, तो उनके चेहरों को वो पढ़ लिया था उन्होंने। किसने, रुकुमनी ने तीनों के चेहरों को, जो चुपचाप बैठे हुए थे, क्योंकि उन लोग कुछ बोल ही नहीं रहे थे, ढूंढने में भी हेल्प नहीं कर रहे थे, और क्यूरियसली क्वाइट एकदम जानने की जैसे आंखें होती हैं बच्चों की कि कुछ छुपा रहे हैं। वेंट ऑन मोर स्लोली, सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरांडा, तो उन्होंने चुपचाप जाके रुकुमनी ने तीनों बच्चों से चुपचाप बोला, क्या तुमने किसी को आते हुए देखा है इधर। A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows, और उनकी आंखें समझ चुकी थी कि क्या हुआ होगा। ओके, another straight tighter one appeared in place of her usually soft pleasant mouth, और उन्होंने बच्चों ने उनके चेहरे पे देखा जो प्लेजेंट हुआ करता था, अब वो प्लेजेंट नहीं था। रुकुमनी वॉज एंग्री, वो गुस्से के, उनका जो था चेहरा गुस्से में भर गया था। मृदु विथ अ शिवर, मृदु अब कपकपा रही थी।
डर के मारे कांपना शुरू हो गया था उनका. She wouldn't be so upset if she knew about the beggar. और वो बोला उन्होंने कि अगर उनको बैगर की हालत पता चलती कि उनके पैरों की क्या हालत है तो वो ऐसा कभी नहीं सोचती. ओके, शी ट्राई टू टेल हर सेल्फ. वो ये सब अपने आप से बात कर रही थी. कौन? मृदु. सो लेट्स रीड फर्दर. टेकिंग अ डीप ब्रेथ शी क्राइड, रुकुमनी, देयर वॉज अ beggar here. Poor thing, he had such boils on his feet. तो taking a breath, so said Rukumani grimly, turning to Ravi. You gave the music master chappals to that old beggar who turns up here? Children these days groaned Pati. Amma, didn't you tell me about Karna who gave away everything he had, even his gold earrings? He was so kind and generous. Okay, silly, snapped Rukumani. Karna didn't give away other people's things. He only gave away his own. But my chappals wouldn't have fitted the beggar's feet. Ravi rushed brashly on. And Amma, if they did fit, would you really not have minded? Ravi, said Rukumani very angrily now. Go inside this minute. She hurried indoor and brought out Gopu Mama's hardly worn new chappals. These should fit you, sir. Please put these on. I am so sorry, my son has been very naughty. The music master's eyes lit up. He put them on, trying not to look too happy. Well, I suppose these will have to do. Okay, so let's understand the previous reading. तो उन लोगों में क्या हुआ कि वो रुकुमनी जो उनके पास गई तीनों के पास, उन्होंने समझ गए वो तीनों बच्चे चुपचाप क्यों बैठे हुए हैं. फिर जो मृदु सोच रही थी कि ऐसा अगर मालूम होता रुकुमनी को तो वो शायद हमें मना नहीं करती, बैगर को उनकी चप्पल देने में उनके बॉयल्स के बारे में पता चलता, वो खुद दे देती. तो रुकुमनी थोड़ी ग्रिमली टर्निंग टू रवि, यू गेव द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल्स, और उनको पता चल गया. टेकिंग अ डीप ब्रेथ शी क्राइड, रुकुमनी, देयर वॉज अ beggar here. Poor thing, he had such a boils on his feet. ये बोल दिया, आई थिंक मृदु ने बोला. और फिर रुकुमनी रवि के पास पहुंची और बोला कि तुमने फिर ये चप्पल्स जो म्यूज़िक मास्टर की थी ये उठा के दे दी बैगर को. फिर रवि ने बोला कि आपने ही तो बोला है ना, चिल्ड्रन दीज डेज ग्रून पाती, यानी कि पूरी सेंटेंस नहीं बोला पाती ने, आजकल के बच्चे ऐसे बोला, झुंझला के बोला थोड़ा. ओके, ग्रूंड यानी कि थोड़ी घुराने वाली जैसी गुस्से वाली आवाज़ में. तो फिर रवि ने क्या बोला कि अम्मा आप ही तो बोलते हो कि हम किसी को कुछ दें, जैसे कि करना ने अपनी सारी चीज़ें दे दी थी जनरस बन के, ही वॉज काइंड, और आप बोलते हो देने वाले बहुत काइंड और जनरस होते हैं. तो रुकुमनी ने एक्सप्लेन किया कि उन्होंने अपनी चीज़ दी थी, किसी और की चीज़ नहीं दी थी. फिर सारी बात समझ आ गई और रुकुमनी अंदर गई, वेरी एंग्री नाउ. ही बोला गो इनसाइड दिस मिनट. शी हरीड इंडोर एंड ब्रॉट आउट गोपू ममाज हार्डली वोन चप्पल. एक न्यू ब्रांड पैर ऑफ चप्पल्स रखी थी उनके घर में, वो लेके आई और रवि को अंदर जाने बोला गुस्से में, और ये म्यूज़िक मास्टर को दिया और बोला कि ये आपको शायद सर फिट होएगी, एंड प्लीज़ फॉरगिव अस फॉर व्हाट माय सन हैज़ डन, ही इज़ अ वेरी नॉटी बॉय. तो ये सब हो गया अभी हमारे लेसन में. होप यू हैव अंडरस्टूड चिल्ड्रन दिस लेसन अप टिल हियर. आई विल कंटिन्यू माय explanation in the upcoming lecture, upcoming video. Till then children, you have to have your eye on your reading, keep reading as I always say. So for till then, goodbye.